Mommy check. So Bhagava Arhan Samma Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantang Sadhammang Sasanghang Ime Sakari Iyatharan Aropite Jayama sadhuno bhante bhagava suchira parinibhutopi pachima janatanukampanasa ime sakare dugata karabhute patiganhatu Amhakam Digaratam Hitaya Sukhaya Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantan Abhivademi Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Anmayang Buddhasya Bhagavato Anmayang Gatantare Anmayang Buddhasya Bhagavato Pumbhabhag Namakaram Guru Mase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andmayam Ratanataya Pranam Gatha Yo Chev Sambhig Parikittan Pathancha Bhadamasi Uddho Susuddho Karuna Mahanavo Yo Chanta Sundabaranyana Lochanu Vandami Buddhamayam Adarenatam Dhammopadipo viyatasya sattuno Yodangapaka bheda bhinnako Lokuttaro yochatadattadipano Vandami dhammang aham adaritam Sangho sukhita vyatiketa sannito Yoditta santo sugatanubodhako Dolapahino adiyo sumedso Vandami tanghang aham adarena tam Punyam maya yama mama sabupandava Mahontu te tassa prabhava sindhya Igatatagato loke upanno arhan samma sambuddho Dhammo ca desito niyaniko upasamiko parinibbaniko
संबोधगामी सुगत पवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदोमनस्य उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो येहि विपयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभते तमपि दुःखं संकीर्तेन पंच उपादानस्कन्धो दुःखः शेषिदं उपादानस्कन्धो वेदनोपादानस्कन्धो संज्ञोपादानस्कन्धो संखारोपादानस्कन्धो विज्ञानोपादानस्कन्धो तेषां परिज्ञाय धर्मानुसो भगवान् एवं बहुलं सावके विनयति एवं भागा च परस्य भगवतो सावकेषु अनुशासने बहुला भवत्यति रूपम् अनिच्छं वेदना अनिच्छा संज्ञा अनिच्छा संखारा अनिच्छा विज्ञानं अनिच्छं रूपं अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानं अनत्ता सब्बे संखारा अनिच्छा सब्बे धम्मा अनत्ताति तेमयम् ओद्नाम जातीय जरा मरणे शोके परिदेवे दुःखे दोमनस्ये उपायासे दुःखोतीर्णा दुःख परेता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य अन्तर्क्रियाय पञ्चायेताति चिरपरिनिर्वृतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटिपजामा शासनोपटिपति इमस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य अन्तर्क्रियाय संबद्धतु आदित्य पर्याय सूत्र सुनेंगे आदित्य पर्याय सूत्र Connected Job 6V7738 Connected Job 6V7738 Evam me sutang ekang samayang bhagava gayayang viharati gaya si se sading di prasahase natatrako bhagava piku amante sisapang di kave adikang kincabe kave sapang adikang cakundi kave adikang rupa adikang cakuvinyanang adikang caku sampaso adiko yang bidang caku sampasapanchaya upajati vikaitam sukang wa dukang wa adukang asukang wa tampi adikang kena adikang adikang raka gina dosa gina moha gina adikang jadiya jara maranena soke hi paridewe hi duke hi domanase hi upayase hi adikang divatami so
ทาอาดิตังสุทวิญญาณังอาดิตังสุทสัมปัสโสอาดิโตยัมปิชังสุทสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาธัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินะโทสะกินะโมหะกินะอาดิตังจาติยาจารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโดมนัสเสหิรุปายาเสหิอาดิตังจิวตามิกานังอาดิตังกันดาอาดิตังกานวิญญาณังอาดิตังกานสัมปัสโสอาดิโตยัมปิตังกานสัมปัสสะปัจจยามุปัจจติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาธัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินะโทสะกินะโมหะกินะอาดิตังจาติยาจารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโดมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิตันติวตามิชีวาอาดิตารสาอาดิตาชีวาวิญญาณังอาดิตังชีวาสัมปัสโสอาดิโตยัมปิหังชีวาสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาธัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินะโทสะกินะโมหะกินะอาดิตังจาติยาจารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโดมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิตังจิวตามิกายโยอาดิโตโพธาปะอาดิตากายวิญญาณังอาดิตังกายสัมปัสโสอาดิโตยัมปิกังกายสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาธัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินะโทสะกินะโมหะกินะอาดิตังจาติยาจารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโดมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิตันติวตามิมโนอาดิโตธัมมาอาดิตามโนวิญญาณังอาดิตังมโนสัมปัสโสอาดิโตยัมปิยัมมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทหิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาธัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินะโทสะกินะโมหะกินะอาดิตังจาติยาจารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโดมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิตันติวตามิเอวังภาโส
สุตวะอริยสาวกจักขุสมิงปินิบินดาติรูปเปสุปินิบินดาติจักขุวิญญาเนปินิบินดาติจักขุสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิกัญจักขุสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติโสตัสมิงปินิบินดาติสาเตสุปินิบินดาติโสตวิญญาเนปินิบินดาติโสตสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิดังโสตสัมปัสสะปัจจยามุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติกานัสมิงปินิบินดาติกันเตสุปินิบินดาติกานวิญญาเนปินิบินดาติการสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิดังกานะสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติจิวายปินิบินดาติรสเสสุปินิบินดาติจิวาวิญญาเนปินิบินดาติจิวาสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิดังจิวาสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติกายาสมิงปินิบินดาติโพธาเปสุปินิบินดาติกายวิญญาเนปินิบินดาติกายสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิทังกายสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติมนัสมิงปินิบินดาติธัมเมสุปินิบินดาติมโนวิญญาเนปินิบินดาติมโนสัมปัสเสปินิบินดาติยัมปิดังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินดาตินิบินตังวิราชติวิราคาวิมุตติติวิมุตติสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติกินาจาติบุสิตาบรมจริยังกตังกรณียังอปารังมิตาตายาติปัจจานาทิอิตมาวจะภะคะวะอะกัมมนาเตภิกขุภะคะวะโตปัสสิตังอภินันตุอิมัสสมิจจปะนะเวยการณัสสมิปัญญมังเอตัสสะภิกขุสหัสสะสะอนุปาทายะอัสสะเวหิจิตตานิวิมุตติสุติอาทิจปริยายสุทันนิจิตังมุตาสีสังฆมา अब ध्यान करेंगे।
समय समय इस समय मन और शरीर की कैसी स्थिति है? इस समय मन और शरीर की कैसी स्थिति है उसको जांच लेते हैं और दोनों को रिलैक्स कर देते हैं उचित उपायों से।
हर अनुभव के दो आयाम, एक अनुभव और एक उसको जानना। अनुभव को और जानने को, दोनों को भिन्न देख पाए, ये एक अभ्यास का महत्वपूर्ण आयाम हमारे। आवाज आ रही है और उसको जाना जा रहा है। एक शब्द है, एक कान है, कान का विज्ञान है, श्रोत विज्ञान है। जिसे हम सुनना कहते हैं। और इसी प्रकार हर इंद्रिय का विज्ञान, और हर विज्ञान के रूट में बेसिक कॉन्शियसनेस कि हम जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं, बेहोश नहीं हैं। जब नैसर्गिक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जानने की हमारी क्षमता है, वो हमेशा बनी रहती है। हम अपने अनुभव पे जान सकते हैं। इसको वेरीफाई करना चाहिए, बार बार वेरीफाई कर लें। ये सब अनात्म है, हमारी पर्सनल नहीं है, प्रकृति का पार्ट है। ये हमारी जीवन शक्ति है, हम जीवित हैं तो इसलिए ये भी उपलब्ध है। जीवन शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है। तो इस प्रकार स्पष्ट समझते हुए हम शुद्ध चेतना में विहार कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं। जान समय तो कहते हैं रेस्टिंग एज अवेयरनेस। अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ शरीर में टच हो रहा है, हवा का टच हो रहा है, वो मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस की क्षमता यही है जानने की क्या कुछ हो रहा है इस काया में, काया के माध्यम से। हम उसको जान रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते।
काया में स्पर्श हो रहा है, काया में वेदना हो रही है, न सुखद है न दुखद है, कहीं पे दुखद है, कहीं पे कुछ, कहीं पे हवा के स्पर्श से अलग वेदना हो रही है। तो जहाँ भी जो भी प्रोमिनेंट होती है वो अपने आप काया विज्ञान के साथ प्रकट होती है। जान रहे हैं, और क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। जब तक विद्या बनी हुई है, अविद्या का आक्रमण नहीं हुआ है, तब तक हम शांत बैठ के इस प्रकृति के खेल को देख सकते हैं। कभी किसी इंद्रिय के द्वार पे, कभी किसी इंद्रिय के द्वार पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देखने में देखना, सुनने में सुनना, इसका अभ्यास कर रहे हैं बेसिकली। बीच में चाहे तो आँख खोल लें, देख सकते हैं आँख खोल के भी। आँख पे किस तरह का स्पर्श होता है, किस तरह की वेदना जागती है। तीन विज्ञानों का हम अनुभव निरंतर कर सकते हैं। काया विज्ञान जो हमेशा उपलब्ध रहता है, चक्षु विज्ञान, सोच विज्ञान,
जब कोई मन में विचार उठता है उसके प्रति पूर्ण सजगता रखना काफी कठिन। कई बार मनोसंपस्स वेदना को हम जान नहीं पाते, तो उसका भी प्रयास करते रहना। जब जब मन में कोई विचार आए खूब सजग होके उसको जान ले, उसके स्वभाव को, प्रिय विचार है, अप्रिय है या न्यूट्रल है, उसको जान लेंगे तो आगे प्रपंच नहीं चलता। ये भी अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे बार बार इस प्रकार काय विज्ञान तो निरंतर उपलब्ध है और बाकी विज्ञान बीच बीच में प्रकट हो जाते हैं। आँख खोली तो चक्षु विज्ञान, बाहर कोई शब्द हुआ तो श्रोत विज्ञान, मन में कुछ जागा तो मनोविज्ञान। इस प्रकार समझते हुए, धर्म को समझते हुए साधना करेंगे तो अनात्म भाव और पुष्ट होगा।
और जो साउंड ऑफ साइलेंस महसूस करते हैं उसको देख सकते हैं कि बड़ी विलक्षण सी चीज़ है। साउंड है लेकिन कान के माध्यम से नहीं सुनी जा रही। कान बंद कर लीजिए जोर से, तब भी सुनाई देती है। तो मालूम नहीं क्या है। ये कहता है कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। ये कहता है कान में कुछ खराबी है। जो भी है अनुभव में है, इतना निश्चित है कि अनुभव में आ रहा है। और एक और बात कि बनी रहता है, इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी, तरीका काइंड चेंज होता रहेगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होता। ये भी इसकी विलक्षणता। ये भी अनुभव में आता रहता है, तो इसको भी देख लेना चाहिए। और मान लेते हैं कि मालूम नहीं क्या है, कुछ है। सभी विज्ञानों से भिन्न है, ये बात स्पष्ट है। तो काय विज्ञान से कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी और विज्ञान से कोई रिलेशनशिप नहीं है।
विचार आ रहे हैं, उनको जाना जा रहा है, तो कोई दोष की बात नहीं। समझ रहे हैं, न ये तंगमम, न ये स्वयमस्मि, न मैं स्वत्ता थी, तो स्वयं ही विचार लुप्त हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक थिंकिंग हो रही है, देखेंगे शून्य से अपने आप क्रिएशन होता है कुछ थॉट का, कुछ देर रहता है और फिर शून्य में चला जाता है। इस प्रकार साधना करते से चारों सतीपट्ठान की भावना हो जाती है। काया, वेदना, चित्त, धम्म, काया में क्या हो रहा है वो तो निरंतर मालूम रहता है, वेदना क्या हो रही है मालूम पड़ती है, कभी कभी कान पे शब्द आता है या आँख खोल कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है, वेदना मालूम पड़ती है। चित्त में कुछ जागता है
विचार आता है, समाप्त हो जाता है। चित्तानुपश्यना। जब हम अनुभवों को समझने का प्रयास करते हैं खंड के रूप में, इंद्रियों के रूप में, तो धम्मानुपश्यना का अभ्यास। सती, धम्म विषय और वीर्य, तीन बुद्धि के अंग धीरे धीरे और प्रतिष्ठित हो रहे हैं। भाविता, बहुलीकता, और बीच बीच में प्रीति भी जागती है, प्रसन्नता जागती है। इस प्रकार जो भी अनुभव में आ रहा है उसको समझ भी रहे हैं, साथ साथ समझ भी रहे हैं और समझ रहे हैं कि सब न एतत्मम न एषो अहमस्मि न मेषो अत्ताति। कोई भी चीज, कोई भी अनुभव मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं। प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना जो हमारे भीतर है उसमें कुछ खेल सा होता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी। इसलिए उपमा दी जाती है कि एक जो अनिदर्शन विज्ञान है, अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है, उसमें लहरों के रूप में समझा जाता है। एक समुद्र है, इसमें लहरें आना कभी कुछ उठती रहती हैं। अथाह सागर है प्योर कॉन्शियसनेस का, जिसमें सभी प्राणी उसमें लहर की तरह है। कर्मों के अनुसार शरीर, कर्मों के अनुसार अनुभव। और सामान्य बैठे हुए ध्यान नहीं कर रहे तब सामान्य जीवन में भी सजग रहते हैं, तो ये सब चीजें बार बार चिंतन कर सकते हैं, प्रत्यावेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार की साधना आँख खोल के दैनिक जीवन में भी यदि हम याद रखें कि साधना करनी है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सजग रहना है। जब भी सजग हो, कुछ देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है, सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है, खा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, मालूम पड़ता रहता है। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है।
अब संघानुसति का अभ्यास करते हैं। सुपटिपन्नो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो भगवान के श्रावक संग ऐसे हैं, ठीक मार्ग पर चलते हैं, सीधे मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान पूर्वक प्रज्ञा के साथ चलते हैं और भली भांति चलते हैं, पूरी तरह हर एस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए। तो जो भिक्षु संघ के हम संपर्क में आए हैं, उनके गुणों को हमने देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो हम अपने मन में विचार कर सकते हैं कि क्या वो इन सब मापदंडों पे पूरे हैं, उतरते हैं हमारी समझ से। उनके प्रति श्रद्धा का जागना स्वाभाविक हो जाता है। उनके द्वारा प्रतिष्ठित मार्ग और फिर हम अपने को भी जांच के देख सकते हैं कि हम भी भगवान के श्रावक संगी हैं, उपासक हैं, उपासिका हैं।
हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी ठीक प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान पूर्वक चल रहे हैं, सभी धर्म के आयाम शील समाधि प्रज्ञा दानशील भावना जैसे भी समझे सबको साथ लेके चल रहे हैं। चाहे हम आर्य संघ को याद करके मन में प्रसन्नता जगा रहे हैं या अपना पर्यवेक्षण कर रहे हैं, अपने जांच कर रहे हैं, दोनों ही मन को अपलिफ्ट करते हैं। देख सकते हैं खुद अनुभव करके प्रसन्नता आती है, मन में कॉन्फिडेंस आता है, धर्म संवेग जागता है। जब हम इतने विशिष्ट भिक्षुओं को देखते हैं जिनका सौभाग्य से सानिध्य हुआ पिछले 2-3 वर्षों में, तो बड़ी प्रसन्नता से हम कह सकते हैं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुङ्गला येषु भगवतो सावक संघो। तो आर्य संघ है, 4 स्टेजेस बताई गई और उसका मार्ग और उसका फल मिला के आर्य के साथ सोतापत्ति मग्ग सोतापत्ति फल और इसी तरह बाकियों के साथ मिला के अट्ठपुरिसपुङ्गला इदं चत्तारि पुरिसयुगानि 4 युगल 4 जोड़े। हमारे मन में जो जितना हमारी समझ से हमने पढ़ा है भगवान की प्रवचनों में, संयोजन के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, श्रोतापति के कौन से फैक्टर्स, सक्काय दिट्ठी, शीलवत परामर्श, विचिकित्सा और फिर बाकी के फैक्टर्स, तो हम देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, कौन सा फैक्टर हमारे में प्रोमिनेंट है अभी भी, और जो भिक्षु संघ जिनके संपर्क में हम आए हैं किस प्रकार वो इन संयोजनों से मुक्त है, जितना हमारे समझ में आ सकता है, और उसको समझ के मन में मोद जागता है, प्रसन्नता जागती है कि इन्होंने किया है तो हम भी कर पाएंगे। अभ्यास करते रहें। तो ये बात भी
एक इन्फ्रेंस के तौर पे हम समझ सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करनीय। तो ये तो स्वाभाविक ही हमारा अपना अनुभव है कि ऐसे आर्य संघ को देख के स्वतः ही हाथ अंजलि में आ जाते हैं, उनका आदर सत्कार करने का मन करता है, उनका आतिथ्य करने का, उनको ऑफरिंग देने का। तो ये तो सबके हमारे अनुभव की बात है। तो अपने अनुभव को याद कर सकते हैं, प्रसन्नता मन में जगा सकते हैं। भगवान की वाणी का अनुमोदन कर सकते हैं कि सचमुच ऐसा ही है। आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करनीय अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति। तो इस लोक में, इस संसार में अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है। अनुत्तर अर्थात जिससे बढ़ के कोई और ना हो, ऐसे महान पुण्य का क्षेत्र। पुण्य क्षेत्र का तात्पर्य कि उनके प्रति किया गया पुण्य महान फल देता है। जैसे उपजाऊ जमीन में पेड़ बीज डालें तो उसका फल बहुत अच्छा आता है, और वही बीज किसी और जमीन में डालें तो फल हल्का आता है। तो उस सेंस में कहा जाता है अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति। उनके प्रति किया गया कोई भी पुण्य का काम महान फलदायक। इतना तो हमारे भी अनुभव में आता है कि उनके प्रति किया गया दान का काम बहुत प्रसन्नता देता है, तुरंत फल। प्रसन्नता के रूप में तुरंत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से संघ वंदना के द्वारा संघानुसति का अभ्यास करते हैं। और भी जो हमारी चैंटिंग में कई चीजें आती हैं। रतन सूत्र में जैसे बात आती है, यथेन्द्र कीलो पठविन सितोसिया चतुर्विवाते ही असंपकंपयो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो वर्य सच्चान अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 13 रत्न है संघ में,
उत्तम रत्न है कि आर्य सत्यों को निरंतरता से देखते हैं और इसलिए उनका मन कभी भी कंपायमान नहीं होता। लोक धर्मों के स्पर्श से किसी भी तरह के वायु आए, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, तो हम याद कर सकते हैं किस तरह की परिस्थितियों में श्रावक संग रहे पास्ट में, और अभी भी किस तरह की परिस्थितियां, दिक्कतें आई, और जो भिक्षुगण हमारे आए थे किस तरह से वो बगैर चित्त को बेचैन किए उनको देखते रहे। उन पर प्रसन्न हो, और जब आए थे तो उनका अभिवादन किया और लिफ्ट में ले गए, और लिफ्ट बंद हो गई आधे रास्ते में। कोई भी उस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी भी प्रकार का अप्रिय परिस्थिति में कोई भी द्वेष का भाव नहीं जागा। यद्यपि हमें उन्हें खींच के कुर्सी से किसी तरह से निकालना पड़ा, तो याद करके स्पष्ट मालूम पड़ता है। पुट्टस्य लोक धम्मे चित्तस्य यस्य न कंपति। तो जब हम इनका इस तरह के उदाहरण देखते हैं तो प्रेरणा जागती है, संघ के प्रति श्रद्धा जागती है। तो समापन करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे। स्वाक्खतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।